Okay, let's begin with cylinder. 2 hours approximately, so 9 o'clock. By 9 we should be free. Cylinder. This is cylinder. This part is the radius of the cylinder. Radius of base and the top of the cylindrical shape is always the same. So this cylinder is also known by one more name, right circular cylinder. Why right? Because this angle over here is 90, also this angle. So the top and the base of the cylinder are always parallel and having the same area of cross section. So this area and this area over here, ये दोनों सर्कल का एरिया सेम है, दोनों की रेडियस सेम है. इनके दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, दैट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस यू कैन से, विच इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर. मतलब सिलेंडर के पास दो डायमेंशंस होते हैं, एक आर और एक एच, रेडियस ऑफ द बेस एंड द हाइट. ठीक है. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब ये टॉप और बेस का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर. पेरीमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन, that is length of the boundary of the cross section, is 2 pi r, circumference of the circle. Curved surface area, ये जो curved surface है उसका एरिया है 2 pi r h. 2 pi r h ये लर्न कर लेना है तुम्हें. ठीक है. फिर टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया में तुम्हें कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस 2 टाइम्स द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इनको ऐड कर देना है. So curved surface area is 2 pi rh plus 2 times the area of cross section is 2 times pi r square, which is 2 pi r bracket h plus r. ये है उसका total surface area. Remember it this way, 2 pi r bracket h plus r plus h anyways. Then volume. Now what is volume? Volume तुमने 9th में पढ़ा हुआ है. What do you exactly mean by the volume? Volume is the amount of space which is within this three-dimensional shape. If it is a two-dimensional shape, तो उसके अंदर कोई space नहीं होती है, because it is, we are just concerned with the area. But if it is a three-dimensional shape, then there is a space within it. तो उसके अंदर जो space है, that is its volume. So volume will be this area of cross section multiplied by this height. Pi r square into h, that is pi r square h, volume of cylinder. ठीक है. So this is basically a solid cylinder, solid right circular cylinder. ये solid cylinder के सारे फॉर्मूला हो गए. वैसे ही hollow cylinder के फॉर्मूला है. तो hollow cylinder में क्या फर्क है? ये जो टॉप और बेस है उसकी कुछ थिकनेस होती है. थिकनेस मतलब देर इज एन आउटर रेडियस कैपिटल आर एंड देर इज एन इनर रेडियस स्मॉल आर. हाइट वही रहेगी h, but since it is hollow cylinder, now the formulae will increase, some more formulae will be there. सबसे पहला thickness of its wall, thickness of the cylinder, capital R minus small r, outer radius minus inner radius. Area of cross section, area of cross section will be this area. Now you know it, you have studied in class 9th, area of plane figures या कुछ. इसमें this is the area of a ring. You know ring का area पढ़ा था तुमने. Pi into capital R square, morning, minus pi into small r square. That is outer area minus inner area. Area of the outer circle minus area of the inner circle is area of the shaded portion. Shaded portion वाले बहुत क्वेश्चन किए थे तुमने 9th में, area and perimeter of plane figures में. So this is the area
of the top part, area of cross section. इससे पहले area of cross section क्या था इसमें? Just pi r square. If you see here, just pi r square, because the cross section was a complete circle, but here the cross section is a ring. That's why pi capital R square minus pi small r square. Pi को बाहर निकाल लो, capital R square minus small r square is the area of the ring. Area of the curved surface. अब यहाँ पे दो curved surface है, एक तो बाहर वाली curved surface. So can you tell me or can you recollect any shape which you have seen which looks like this in real life? A pipe, a ring, yeah. Yes, a ring, a pipe. ऐसे बहुत सारे shapes हैं which you come across in day-to-day life which looks like this exactly. So a pipe, a ring, or a pen, but pen is closed from one side. If you open it for changing the refill, it looks like this. या फॉइल पेपर का जो जिसके ऊपर फॉइल पेपर को रैप करते हैं, वो जो कार्डबोर्ड का एक रोल होता है ना उसके अंदर, आफ्टर इट एंड्स you'll, yeah, many bottles are like that. Yeah, so you'll find many shapes like these, but this shape which we are talking about is open from both ends. So this is one opening, this is open from here, and this is another opening. It's opening, it's open, it's hollow. ठीक है, तो एक्सटर्नल कर्व्ड सरफेस है इसके पास और इंटरनल कर्व्ड सरफेस है. यू कैन फील बोथ ऑफ देम. एक्सटर्नल कर्व्ड सरफेस इज 2 पाई कैपिटल आर एच, क्योंकि कर्व्ड सरफेस एरिया तो वही था फॉर्मूला 2 पाई आर एच. फॉर्मूला चेंज नहीं करेंगे, फॉर्मूला 2 पाई आर एच ही रखेंगे. सी एस ए बोलते हैं इसको, सी एस ए, कर्व्ड सरफेस एरिया. दिस इज जस्ट लाइक योर लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड. क्यूबॉइड पढ़ा था ना 9th, वही है. उसमें एल ए से बोलते थे, लैटरल होता था वो, यहाँ पे सी ए से बोलता है, कर्व्ड सरफेस एरिया. बट दिस इज एक्सटर्नल एंड दिस इज इंटरनल. इंटरनल में सी, एक्सटर्नल में यू गेट कैपिटल आर, दैट इज एक्सटर्नल रेडियस. इंटरनल में यू गेट स्मॉल आर, दैट इज इंटरनल रेडियस. फॉर्मूला वही रहेगा. टोटल सरफेस एरिया. नाउ just apply some logic and derive this formula. This is so easy. Total surface area में we are going to count all the surfaces which we can touch. That is the only logic we can apply. Can you touch the top? Yeah, you can touch the top. That only the ring part, right? So we will have this area of cross section, which is pi into capital R square minus small r square. Can you touch the base? Again, it has that ring area. ठीक है, so you can touch that part. Again, you will get pi into capital R square minus small r square. So there are 2 pi into capital R square minus small r square, right? Right? Acha. Can you touch the outer curved surface? Yes. So there is 2 pi capital RH. And can you touch the inner curved surface? Yes. So that is 2 pi small rh. If you add all of them, you get the total surface area. तो इसको तुम लर्न करने मत बैठना. लर्न तुम्हें सिर्फ इतना ही करना है. वो तो डिराइव कर सकते हो, और डिराइव करने के बाद भी मैं तुम्हें बताऊंगा कैलकुलेशन कैसे सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग. ठीक है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. गुड मॉर्निंग. ठीक है, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल. वॉल्यूम ऑफ मटेरियल मतलब आई एम नॉट कंसर्न्ड विद द स्पेस विद इन इट नाउ, बिकॉज दैट इज जस्ट इंटरनल वॉल्यूम जिसमें एयर होती है. मुझे चाहिए कि सपोज ये मेटल का पाइप है, तो उसमें कितना मेटल यूज हुआ है, दैट इज वॉल्यूम ऑफ मटेरियल. ठीक है, सो वॉल्यूम ऑफ मटेरियल इज आउटर वॉल्यूम. आउटर वॉल्यूम मतलब पूरा पाइप का विथ एयर, अंदर का जो खाली जगह है उसका भी वॉल्यूम ले लूंगा मैं, माइनस इनर वॉल्यूम. इनर वॉल्यूम इज
द एम्प्टी पार्ट का वॉल्यूम, उसको मैं हटा दूंगा तो मुझे सिर्फ वो थिकनेस वाले पार्ट का वॉल्यूम मिल जाएगा. सो दैट इज पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर एच. इसमें पाई और एच बाहर निकल जाएंगे, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर अंदर रह जाएगा. सो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ मटीरियल. ठीक है. सो question is, how important are these formulae? They are very important. Without formulae you cannot move a single inch. But is it necessary to put your efforts in learning the formulae? According to me, no. You should learn the basic formulae and then you should solve maximum questions in which these formulae are used. When you use the formula again and again, you effortlessly memorize it. So solve more questions rather than focusing on learning the formula only. Because only formula learning will not help you. You need problem solving tactics. If you don't know problem solving और तुम formula learn करके गए हो, सारे formula तुम्हें एकदम रट्टा हो गया, तो तुम्हें पता ही नहीं स्टेप क्या है, आगे करना क्या है, क्या करोगे? फॉर्मूला का अचार डालोगे एग्जाम में, फॉर्मूला लिख के आओगे, फॉर्मूला का आधा मार्क देगी मैम. सो ये भीख पे तुम्हें जिंदा रहना पड़ेगा फॉर्मूला के आधे मार्क पे. उससे अच्छा है फॉर्मूला बेसिक वाले लर्न कर लो और क्वेश्चन सॉल्व करो और देखो बार बार. अगर भूल जाते हो फॉर्मूला कोई बात नहीं, बार फिर से देख लो, तो देखते देखते तुम्हें लर्न हो जाए. ठीक है. तो ये सिलेंडर वाला पार्ट है, इसमें टोटल 5 क्वेश्चन है. इसके बाद है अपना कोन वाला पार्ट. कोन में ज्यादा फॉर्मूले दिए नहीं है तुम्हें और कोन में टोटल 6 क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन है. स्फीयर नहीं है तुम बोल रहे हो, यू डोंट हैव स्फीयर. ओके. व्हाट अबाउट दिस कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स? नो वन हैज एनी आइडिया, क्योंकि यहाँ पे स्फीयर वाले क्वेश्चन बहुत सारे हैं. स्फीयर स्फीयर यहाँ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स में भी स्फीयर आ जाएगा. आई वॉन्ट करेक्ट इन्फॉर्मेशन, अदरवाइज मैं पहले 2 पार्ट अच्छे से पढ़ाऊंगा, बाद में आई डोंट नो. मिसलेनियस प्रॉब्लम्स, यहाँ पे सिलेंडर और कोन आ गया पहले में. यस, इसमें भी सिलेंडर है, इसमें भी सिलेंडर कोन है, इसमें स्फीयर आ गया. इसमें नहीं है कुछ भी, मतलब हाफ सिलेंडर और क्यूबॉइड है. थैंक यू, थैंक यू, शुक्रिया मेरा काम बढ़ाने के लिए सुबह सुबह. हाँ क्यों नहीं, डेफिनेटली वी कैन डू दैट रिसर्च. सुबह 7 बजे यही करते हैं हम लोग. पहले एक काम करते हैं, पहले 2 पार्ट खत्म करते हैं. ठीक है, पहले 2 पार्ट, दैट इज एक्सक्लूसिवली फॉर सिलेंडर एंड कोन. वंस यू नो एट सिलेंडर एंड कोन, एटलीस्ट यू कैन अटेम्प्ट द क्वेश्चंस ना. फिर सिलेंडर और कोन पे कोई भी क्वेश्चन आ जाए हम देख सकते हैं. पहले ये 2 तो कर लें. सो लेट्स डू द सिलेंडर, 5 क्वेश्चन, एंड देन विल मूव टू सिलेंडर और कोन करके देखते हैं बाद में क्या करना है. सो कैलकुलेशंस होंगे बहुत सारे, काफी कैलकुलेशंस होंगे. आई एम गोइंग टू गिव यू some tricks, some hints, techniques of how to minimize your calculation, make them easy. Because if you think this chapter is all about calculations, बड़े बड़े multiplications करने होंगे, ऐसा होता नहीं है. You can, what I do is I'm very lazy person when it comes to calculation, just like you. I don't know about you, maybe you like doing calculation, I don't. So what I do is I find ways of escaping calculations, and
Most of the time it helps me. So I'm going to teach you that if you want to learn some lazy techniques. Okay, first question. The area of curved surface of a cylinder is 4400 centimeter square. मतलब CSA बोल रहे हो. CSA, प्लीज लिखो मेरे साथ 4400 centimeter square. And the circumference of its base is 110. अब ये सॉलिड सिलेंडर है क्योंकि यहाँ तो कुछ बोला नहीं है, हॉलो है या कुछ, तो हम सॉलिड मान के चलेंगे. Circumference of its base is 2 pi r, which is 110 centimeter. Find the height and find the volume. So very simple. CSA का फॉर्मूला क्या है? 2 pi r h. ठीक है, हम लोग लर्न नहीं करेंगे डायरेक्टली, सॉल्व करते करते लर्न करेंगे. ठीक है, CSA 2 pi r h. CSA की जगह लिखो 4400. 2 टाइम्स पाई. अब पाई की वैल्यू क्या लेनी है, इसके ऊपर एक डिबेट होती है. पाई की दो वैल्यू होती है, 22/7 या फिर 3.14. अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है तो तुम कुछ भी ले सकते हो. ठीक है, बट अगर क्वेश्चन में दिया है तो तुम्हें ऑप्शन नहीं है, वही लेना पड़ेगा जो दिया है. बट अगर जब क्वेश्चन में नहीं दिया होता है तो यू सिलेक्ट सच अ वैल्यू ऑफ पाई विच हेल्प्स यू विद द क्वेश्चन. अब यहां पे CSA इज 4400 एंड पाई की वैल्यू अगर मैं 22/7 लेता हूं तो 22 इज अ फैक्टर ऑफ 4200, मतलब कहीं ना कहीं कटिंग होने के चांसेस है. यहाँ पे 3.14 लेके कोई मतलब नहीं है, मल्टीप्लीकेशन बढ़ जाएगा, लेकिन 22/7 से कटिंग होगी और इजी होगा. तो ये पहला चॉइस तुम करोगे, 22/7. यस, डाल सकते हैं ना, क्यों नहीं डाल सकते. यू आर राइट, यू आर राइट. एक्चुअली 2 pi r की जगह 110 ही लिख देना है. into r that is not given to you into h. You are right. यहाँ पे आके रियलाइज होता था कि दो मिसिंग है टर्म, दैट इज r भी मिसिंग है और h भी मिसिंग है, जिसके बिना वॉल्यूम मिलेगा नहीं. ठीक है, तो 2 pi r जो ऑलरेडी हमें दिया हुआ है वो हम लोग यूज कर सकते हैं. सो 4400 is equal to 110, that is 2 pi r का वैल्यू into h. So 4400 divide by 110 is equal to h. So h is equal to, so 11 fours are 44 and there is one more zero, so 40 centimeter height आ गई. राइट, एक बार हाइट मिल गया तुम्हें तो तुम रेडियस ढूंढ सकते हो. बट रेडियस तो तुम्हें 2 पाई आर से भी मिल सकती है, बट रेडियस चाहिए, रेडियस के बिना तो काम नहीं होगा. ठीक है, सो 2 पाई आर इज इक्वल टू 110 ले लो. 2 into 22/7 into r is equal to 110. So r is equal to 110 times 7/22 times 1/2. मैंने r को सिर्फ उधर रखा, बाकी सारे नंबर्स को ये साइड लेके आ गया. So 22 5s are 110. 22 5s are. So I have r is equal to 35/2. I'll keep it as it is. I'll not convert it into decimals. Why? Because radius is not my final answer. ये भी एक ट्रिक है कि जब तक फाइनल आंसर नहीं आता है, डोंट ट्राई टू कन्वर्ट एनीथिंग इनटू डेसिमल्स और ब्रिंग इट इन लोएस्ट फॉर्म. कीप इट एज इट इज. ठीक है, सो आई हैव गॉट द हाइट, आई हैव गॉट द रेडियस, सो आई कैन फाइंड द वॉल्यूम नाउ. फॉर्मूला क्या है वॉल्यूम का? पाई r square h, that is 22/7 into r square is 35/2 times 35/2 times h is 40. So 7 5s are 35, 2 20s are 40 and 2 10s are 20. So for volume,
I'm getting 22 times 5 times 35 times 10. मैंने तुम्हें बोला था आई एम वेरी लेजी विथ कैलकुलेशन. So see what I do here. What I'll do is I'll multiply 22 and 35 orally because that I think I can. Easy है. 35 into 20 700 होता है कि नहीं? 35 2 ज़ा 70, 35 20 ज़ा 700. ठीक है, और एक 2 बचा है, 22 है, मैंने सिर्फ 20 से मल्टीप्लाई किया है. तो अब 35 को सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा? 70. अब वो दोनों को ऐड कर दो, 700 प्लस 70 770. तो 35 22 ज़ा 770. 770 टाइम्स यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 10 है. अब 10 को मत मल्टीप्लाई करो, 5 को करो मल्टीप्लाई, ये भी इजी है. 75 ज़ा 75 ज़ा 350. अच्छा, अपने पास 7 5 अभी बचा है अभी भी. एक्चुअली यहाँ पे 770 है, तो 705 ज़ा 3500. एंड अभी अपने पास 7 भी बचा है. 7 5 ज़ा कितना होगा? कितना? 35. सो 3500 प्लस 350 करना पड़ेगा अपने को, क्योंकि 770 है. सो 3500 प्लस 350 इज हाउ मच? 3850. 3850 into 10. 38500 centimeter cube. When you are lazy, you get good at mathematics because you don't want to calculate, multiply. Let's check whether the answer is correct. Yeah, it is 38500. ठीक है, so this is the whole method of solving it. But don't do all this in exam. See it orally, if you get the answer and then verify, it will save your time. And also it will give you confidence that you did, means तुमने क्या किया? Double cross check कर लिया. So always cross check. In exam, before writing your final answer, always cross check and then write the final answer so that you don't have to check it again. हर एक आंसर अगर क्रॉस चेक करके लिखोगे तो इजी होगा. Second question. The barrel of a fountain pen, cylindrical in shape, is 7 centimeter long and 5 mm in diameter. So, height is 7 centimeter. Barrel is 7 centimeter long, इसका मतलब height की बात कर रहे हो. And 5 mm in diameter. The diameter is 5 mm. Can you tell me radius will be how much? 2.5 mm. And can you convert it into centimeters? 0.25. Divide by 10 कर देंगे. So I've got the radius and I've got the height in centimeters. A full barrel of ink in the pen will be used up when we write 310 words on an average. मतलब वो बैरल जिसकी हाइट 7 है और रेडियस 0.25 है, उसमें अगर पूरा इंक मैंने फिल कर दिया एंड देन इफ आई स्टार्ट राइटिंग, आई शुड बी writing on an average 310 words with that full barrel of ink. How many words would use up a bottle of ink containing 1/5 of a liter? मतलब अगर मेरे पास सिर्फ 1/5 ऑफ अ लीटर है बॉटल में इंक, तो उसमें मैं कितने वर्ड्स लिख पाऊंगा? तो यहाँ पे यूनिटरी मेथड हम लोग कर सकते हैं. ठीक है, आंसर करेक्ट टू द नियरेस्ट 100 वर्ड्स. ठीक है, सो आई शो यू हाउ टू डू इट. सबसे पहले विल फाइंड वॉल्यूम ऑफ इंक इन द पेन. पाई
r square h. What value of pi do we have to use? This they have not given. So what I'll do is one more shortcut. I'll not put the value of pi. I don't like it. I'll keep it pi. ठीक है, into r square. So what is the radius? 0.25. इसकी स्क्वायर का इसका स्क्वायर कर देंगे. And what is the height? 40, right? Sorry, 7. 40 तो इससे पहले था. 7. So volume is 0.25 का स्क्वायर कितना होता है? 0.0625 है ना, क्योंकि 25 का स्क्वायर 625 होता है. सो 0.0625 into 7 into pi centimeter cube. This is the volume of ink in the pen. ठीक है. Volume of ink in bottle. बॉटल में हमारे पास कितनी इंक है? 1/5 of 1 liter. 1/5 of a liter बोला था. That is 1/5 into 1000 ml. Yeah, centimeter cube. Yeah. So that is 200 ml, which is equal to 200 centimeter cube. Right? इतनी इंक हमारे पास है पेन में, और इतनी इंक हमारे पास है बॉटल. अब जो पेन में इंक है, इट कैन राइट अराउंड 300 वर्ड्स ऑन एन एवरेज. सो यहां पे इसके नीचे लिखूंगा नंबर ऑफ वर्ड्स. कितना आएगा? 310. और यहां पे नंबर ऑफ वर्ड्स कितना आएगा? क्वेश्चन मार्क. बट आई डिड नॉट राइट इट प्रॉपरली. लेट मी राइट इट in a unitary method. If किसी की गुड मॉर्निंग तो लेट हो रही है. कौन है ये? Finally, he feels like coming to class. Yeah. So you will write like this. Volume of ink, number of words. ये है unitary method का formation. ठीक है. Can you tell me the amount of, sorry, the volume of ink in the pen? हाँ, और इससे कितने वर्ड्स लिख सकते हैं? एंड वॉल्यूम ऑफ इंक इन द बॉटल कितना है? ये भी सेंटीमीटर क्यूब. और इससे कितने वर्ड्स लिख सकते हैं हमें ढूंढना है. ठीक है. सो इट विल बी 200 टाइम्स 310 अपॉन 0.0625 टाइम्स 7 टाइम्स पाई. पाई की वैल्यू डालनी पड़ेगी. मुझे लगा कहीं पे कुछ कट होने वाला है. यस, तो पाई की वैल्यू डाल के इजी हो जाएगा. 200 टाइम्स 310 अपॉन, इसको मैं लिख सकता हूँ 625 अपॉन 10,000, राइट, इंटू 7 इंटू 22/7. 7 तो कट जाएगा. ये जो 10,000 है उसको ऊपर भेज देंगे हम लोग. सो 200 टाइम्स 310
times 10,000 the whole upon 625 times 22. So ये 25 से कटेगा, 25 25 जा एंड 25 8 जा, 25 8 जा 200 होता है, और ये 25 ये 10,000 को भी कट करेगा, 25 4 जा 100, तो यहाँ पे 400 आ जाएगा, 22 2 11 जा 2 4 जा, राइट। सो मेरे पास क्या बचा है अभी फाइनली, 4 इंटू 400 इंटू 310, दैट इज 1600 टाइम्स 310 द होल अपॉन 11। ठीक है, इसको प्लीज कैलकुलेट करो क्योंकि और कोई अपने पास रास्ता बचा नहीं है अभी। ठीक है, सो इसको कैलकुलेट करो एंड टेल मी द आंसर अप टू 1 प्लेस ऑफ डेसिमल, दैट्स इट, ज्यादा डिवाइड नहीं करना है क्योंकि वैसे भी अपने को नियरेस्ट टू 100 वर्ड्स बताने हैं, तो 1 place of decimal would be more than enough. Sorry, what is 45.1? Sorry, number of words. नहीं, 310 तो इंक से ही लिख पा रहे थे, कुछ तो जीरो वीरो मिस किए। सारे जीरोस मिस कर दिए। हाँ, 45 वर्ड्स कैलीग्राफी में भी इतना Yes, please. 4 point. एक मिनट, 45090, एक और जीरो एक्स्ट्रा डाल दिया, इसके बाद डायरेक्टली पॉइंट आके फिर 09 आएगा शायद, 45,090 पॉइंट समथिंग। अब तुम्हें क्या बोला है कि नियरेस्ट टू 100 वर्ड्स हमें बताने हैं, मतलब 45,090 को राउंड ऑफ करना है, ये तो ऑलरेडी राउंड है, लेकिन हमें नियरेस्ट टू 100 राउंड करना है। नियरेस्ट टू 100 मतलब 45,000 या फिर 45,100, किससे नजदीक है ये नंबर? 45,100 से नजदीक है अप्रोक्सीमेटली। So you can write approximately 45,100 words with the amount of ink present in the bottle, right? A cylindrical tube open at both ends is made of metal. Internal diameter of the tube is 11.2 centimeter. Internal diameter मतलब small d. Can you tell me what will be small r?
Very good, 5.6 centimeter. And its length is 21 centimeter. So height 21 centimeter. The metal everywhere is 0.4 centimeter in thickness. So whenever you have been given an open cylindrical tube, that is a hollow cylinder, जिसकी thickness हमें बताइए. So what is thickness exactly? Capital R minus small r. Outer radius minus inner radius is how much? 0.4. So can we find the outer radius? Yes. So outer radius will be 0.4 plus small r. That is 0.4 plus 5.6, which is 6 centimeter. So we got the outer radius, we got the inner radius, we got the height. Calculate the volume of the metal correct to one place of decimal. Volume of metal. Volume of metal मतलब hollow cylinder का volume in this case. So that is pi h into r square minus r square. Pi r square h की जगह पे मैंने r square minus r square डाल दिया. So that is 22 by 7 times height is 21 times capital R square, which is 6 square, minus small r square, which is 5.6 square. 7 threes are 21, 22 threes are 66. Now use a technique. A square minus b square is a plus b, a minus b. Six times 6 plus 5.6 कितना होता है? 11.6 times 6, 0.4. You're right. You have no options but to multiply. इतना तो करना ही पड़ेगा. You'll find the volume in centimeter cube. So, 3062.2. 3061. 3062.2. पता लगाओ. पता नहीं मत बोलो. 306.24. 306.24. अच्छा. Okay, next question. Which you can't see anything here. Okay, magic. Yes, so find the volume of largest cylinder formed when a rectangular piece of paper 22 centimeter by 15 centimeter is rolled along its longer side. मतलब एक पेपर है, उसको अपनी longer side के along ऐसे हम roll करते हैं, तो सबसे largest cylinder form होगा, उसका volume ढूंढना है. You are absolutely correct. Let me show you. ये तुम्हारा पेपर है, ठीक है? इसको हम ऐसे रोल कर रहे हैं, ऐसे नहीं, ऐसे, ठीक है? लेकिन when you're rolling it, make sure that the cylinder which is formed has the largest volume. Largest volume का मतलब क्या है? मैं इसको जितना चाहे छोटा बना सकता हूँ by rolling it like this. By rolling it like this. So cylinder
का जो रेडियस है ना, इट विल गो ऑन बिकमिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर like this. I'm still rolling it along its length. Space मतलब एग्जैक्टली लार्जेस्ट सिलेंडर का मतलब यह है कि ऐसा नहीं होना चाहिए. लार्जेस्ट सिलेंडर का मतलब द एजेस शुड जस्ट बेयरली टच. एजेस अगर बेयरली टच करेगी तो लार्जेस्ट सिलेंडर बनेगा. ठीक है, एजेस बेयरली टच कर रही है मतलब जो उसकी लेंथ है, लेंथ ये 22 सेंटीमीटर जो दिख रहा है ना तुम्हें, दैट विल बिकम द सरकमफरेंस. राइट, ये खोल दिया तो लेंथ, ये बंद कर दिया तो सरकमफरेंस. और इसकी जो हाइट है मतलब ब्रेथ है वो हाइट रहेगी. सो इसका मतलब है व्हाट वी हैव हियर इज द circumference which is equal to 22 centimeter and the height which is equal to 15 centimeter. बस मुझे इससे वॉल्यूम निकालना है. फर्स्ट आई, हाँ, यस, व्हाट यू सेड. अरे वॉल्यूम बेटा, वॉल्यूम मतलब स्पेस कंटेन्ड. ये तो पेपर से बना है, तो पेपर का वॉल्यूम तो नहीं ढूंढेंगे, पेपर कितना यूज हुआ है. हम सिर्फ अंदर की स्पेस निकालेंगे. ठीक है, सो पहले सरकमफरेंस इज 2 पाई आर विच इज 22. सो 2 इंटू 22 बाई 7 टाइम्स आर इज इक्वल टू 22. कटेगा दोनों साइड से. सो आर इज इक्वल टू 7 बाई 2 सेंटीमीटर. Height we know already, so volume is pi r square h, that is 22 by 7 into 7 by 2 into 7 by 2 into 15. 7 7 katega, 2 11s are, and you can cut whatever you want here. 2 3.5s are. So volume will be 11 times 15 times 3.5. Please find out. इस बार मुंबई में विंटर थोड़ा लेट आया नहीं. जनरली दिसंबर में हो जाता है ये वेदर. सॉरी, 5. थप्पड़ मारूं एक कॉन्फिडेंस के लिए. 577.5. Do you remember Archimedes principle? This place is equal to volume of the submerged into the water. Very good. Supposedly this is the brightest we can go. ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे टेक्स्ट बुक में. When a metal cube is completely submerged in water contained in a cylindrical vessel with a diameter 30 centimeter, the level of water rises by 141 by 99. ये नंबर को साइड में लिखो जरा, 141 by 99.
हम्म अब यहां पे पहले तो डायमीटर ऑफ वेसल कितना है, 30 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी हो जाएगी, 15 सेंटीमीटर। एंड राइज इन वाटर लेवल इज हाउ मच, 141/99। इसको मिक्स फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कर सकते हो कन्वर्ट। ठीक है। सो मेटल क्यूब को हमने कंप्लीटली सबमर्ज किया वाटर के अंदर। वाटर सिलिंड्रिकल वेसल में था, वेसल का डायमीटर 30 सेंटीमीटर था, और जैसे ही क्यूब को पूरा सबमर्ज किया, हाइट ऑफ वाटर इन द सिलिंड्रिकल वेसल इंक्रीज्ड बाय 140/99 सेंटीमीटर। आगे तो पूछो, लिखा ही नहीं है कुछ, कोई बात नहीं। फाइंड द लेंथ ऑफ एज ऑफ द क्यूब एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। ये क्यूब जिसको सबमर्ज किया है हमने, उसकी एज की लेंथ कितनी होगी और उसका टीएस है, टोटल सरफेस एरिया क्यूब का कितना होगा, ये पूछा है। तो हमारे पास जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसमें क्यूब का कोई इंफॉर्मेशन नहीं, बट वी कैन रिलेट। रिलेशन होगा फ्रॉम आर्किमिडीज प्रिंसिपल। सो बाय, ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। आर्किमिडीज क्या मतलब, उसने अपना जो इज्जत गवाई है ग्रीक के रोड्स पे भाग के, इसी के लिए तो किया है उसने ये सब, कि हम मैथ्स में उसको यूज कर सके आफ्टर अ ईयर विदाउट एनी कंटेक्स्ट। फिर यूरेका यूरेका, आज तक उसकी मूर्ति पे लोग पत्थर मारते हैं। यूरेका, सुबह सुबह क्या दिखा दिया बे, यूरेका। यूरेका, घर पे रहे अपने यूरेका। वो किंग, आज भी उसको पूरे सपने आते हैं किंग के मम्मी को। ग्रीस में मम्मी वम्मी होता नहीं ना, अगर होता तो आते। By Archimedes' principle, volume of object submerged is equal to volume of water displaced. So यहाँ पे submerged object cube है, इसलिए मैं लिख सकता हूँ volume of cube is equal to volume of water displaced. अब देखो, water displaced is very important here. If you look at the diagram, only 141/99 centimeter of water has been displaced. So height will take only 141/99, not the height of whole vessel. क्योंकि हमें सिर्फ displaced volume से मतलब है, पूरे वॉल्यूम से नहीं। रेडियस 15 ही रखेंगे हम लोग, हाइट 140/99 रखेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस विल बी इन द फॉर्मूला ऑफ पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, that is 22/7 into r square, which is 15 times 15 times h, that is 140/99. Now let's simplify this. 11 twos are 11, 9s are 7, 20s are 3, 3s are 3, 5s are 3, 5s are again, and everything is cut in the denominator. So 2 5s are 10, 10 and यहाँ पे आएगा 100, मतलब 1000 सेंटीमीटर क्यूब। वाओ, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज, यस, सो एज ऑफ क्यूब आसानी से मिल जाएगा।
So volume is side cube, 1000 is side cube, so side is cube root of 1000, which is 10 centimeter. एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हमें ढूंढना था, एक्स्ट्रा क्वेश्चन था एक, 6a² फॉर्मूला फ्रॉम क्लास 9th, 6 into a², that is 10 square, that is 6 into 100, which is 600 centimeter square. 600 centimeter square becomes the TSA. So आर्किमिडीज प्रिंसिपल से इजी हो गया ये, नहीं तो डिफिकल्ट होता. ठीक है. So we are done with the first part, that is cylinder. Now let's focus on cone. Okay, so cone की बहुत इंटरेस्टिंग डेफिनेशन दी है यहाँ पे. A solid obtained on revolving a right angle triangle about one of its sides other than the hypotenuse is called a cone or a right circular cone. यह तुम्हारा राइट एंगल ट्राइंगल है, उसका जो वर्टेक्स है ना, वर्टेक्स, उसको ऐसे पकड़ लो कंपास के, वो कंपास का ऊपर का जो ग्रिप होता है ना उसकी तरह, और उसको ऐसे घुमा दो, तो ये घूम के रिवॉल्व होके एक जो सॉलिड शेप बनाएगा, दैट विल लुक लाइक अ कोन. सो दिस इज अ कोन. कोन रियल लाइफ में ऑफ कोर्स तुमने देखा है, आइसक्रीम का कोन, क्रीपी बच्चों के बर्थडे में जबरदस्ती पहनाई जाने वाली जोकर वाली टोपी. आई नो कुछ बच्चों की बर्थडे पार्टी होती है, मुझे अभी समझ में आ रहा है ये, जब बड़ों को भी इनवाइट किया जाता है तो उनको भी पहननी पड़ती है, उनको भी पहननी पड़ती है, और नफरत है मुझे उस बात से. क्यों पहननी पड़ती है? मैं क्यों पहनूंगा? तुम्हारे बच्चे का बर्थडे है, तुम मनाओ, मुझे क्यों पहना रहे हो यार? मैंने गिफ्ट लेके आया ना, ले लो ना गिफ्ट, ले लो गिफ्ट, लो रखो, मुझे मत दो तुम्हारी टोपी, जरूरत नहीं है मुझे तुम्हारी टोपी पहनने का. तो ये कोन मुझे वहां पे दिखता है, इसलिए मुझे कोन भी नहीं पसंद है. In your son's birthday. आई डिड नॉट, आई डिड नॉट. मैं, हाँ एक्चुअली मैं वो कॉन्सेप्ट ही नहीं रखता. किस बात की टोपी भाई, क्यों टोपी? और क्या, एक बार तो मैं मतलब, अंकल अंकल ये पहना अंकल, ऐसा कोई आया मेरे पास बच्चा, तो मैंने ऐसे लेके मर्डर कर दिया उधर ही टोपी का. इन योर फेस यू लिटिल, जस्ट गेट आउट, भगा दिया उसको. बर्थडे था बेचारे का, आज तक बर्थडे के दिन में खौफ में रहता है वो, और टोपी देख के ही उसको पैनिक अटैक आता है. क्या बोलूं मैं. एनीवेज लेट्स कम बैक टू द कोन. ये सब रिकॉर्ड हो रहा है, ये बच्चा जब सुनेगा तो. या सो कोन. तो कोन के पास 3 डायमेंशन होते हैं. एक तो होती है हाइट, विच इज दिस हाइट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टेक्स. ये वर्टेक्स है और ये बेस का सेंटर है, बेस सर्कुलर होता है. दिस इज द हाइट, दिस इज द रेडियस ऑफ कोर्स, एंड दिस इज स्लैंट हाइट. स्लैंट हाइट. सो ये 3 डायमेंशन है, वन मोर देन द सिलेंडर. And there is a relationship between slant height and the radius, which is Pythagoras theorem. Slant height का square is equal to radius square plus height square. ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चंस में तुम्हें स्लैंट हाइट देते हैं, रेडियस देते हैं, लेकिन हाइट नहीं देते, और वॉल्यूम पूछते हैं.
बहुत सारे क्वेश्चन में हाइट देते हैं, रेडियस देते हैं, स्लैंट हाइट नहीं देते हैं, और कर्व सरफेस एरिया पूछते हैं. So you have to find the missing one and then apply the formula. I'll tell you why. Formula for volume, that is space inside a cone, is 1 by 3 pi r square h. Now if you see this formula, it is exactly same as cylinder, but just 1/3 has been multiplied to it. So volume of a cone is 1/3 the volume of a cylinder with radius r and height h. 1/3 of the volume of cylinder. Curved surface area is pi r L. Curved or lateral surface area is pi r L. Total surface area is curved surface area plus base area. That is pi r L plus pi r square. Pi r bracket L plus r. Curved surface area plus base area. Base. That is pi r L plus pi r square. और पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर. ठीक है. सो तीन ही फॉर्मूला है इसमें, वॉल्यूम, कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, बस. और हॉलो कोन नहीं है तुम्हें, यू डोंट हैव हॉलो कोन. ठीक है, विच मेक्स द मैटर वर्स. हॉलो कोन बहुत ही डिफिकल्ट चीज है. नॉट सो डिफिकल्ट बट या इट इज नॉट सो इजी. तो कोन वाले क्वेश्चंस करते हैं अभी. Radius of the base and height of circular right circular cone are 7 and 24 centimeter respectively. So radius is 7 centimeter, height is 24 centimeter. Find the volume and total surface area. Volume and TSA. So volume is 1 by 3 pi r square h. You just have to put the value. For TSA, you require slant height. And L is equal to under root of r square plus h square. This is the direct formula for L. You can apply this formula, put the value of radius, which is 7 square, plus height, this is 24 square. Simplify and get the answer for slant height. Then use the formula for total surface area. That is, you remember the formula? Total surface area is pi r square plus pi r L. That is pi r bracket r plus L. Put the values and get the total surface area. दोनों. Okay, you're saying 1 2 3 2. Confirm करिए कोई. One two three two centimeter cube. Then find the slant height. Very good. 25 is correct. Now find the TS.
704. Please confirm someone. Okay. Yes. This was a simple problem based on cone. TSA pi r bracket L plus R or R plus L. Okay, let's go ahead. A right circular cone is 3.6 centimeter high and radius of its base is 1.6 centimeter. मतलब H और R दिया है. It is melted and recasted into a right circular cone with radius of base as 1.2 centimeter. Find its height. So this question is based on the concept of melting and recasting, conversion of solid. Whenever a solid is melted and recasted, its volume remains the same. Volume उतना ही रहता है उसका. So what we can do is, rather than finding the volume separately, we can equate the volume right away. So we'll write volume of cone 1 is equal to volume of cone 2. दोनों का वॉल्यूम सेम है क्योंकि एक को मेल्ट करके दूसरा बना है. तो वॉल्यूम का फॉर्मूला कितना है? 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1 is equal to 1/3 pi R2 square H2. R1 H1, R2 H2 are the radii and heights of two cones which we have and which we will get. दोनों साइड से 1/3 पहले ही कट जाएगा, पाई पाई पहले ही कट जाएगा. ओके, तो क्या बचेगा? R1 स्क्वायर. तो पहले वाले कोन की रेडियस कितनी है? 1.6 इंटू 1.6 और उसकी हाइट कितनी है? 3.6. और जो कोन हमें मिलेगा रिकास्ट करके उसकी रेडियस कितनी है? 1.2. 1.2 टाइम्स 1.2 और हाइट कितनी है? नहीं पता, h. So what we'll do is 1.6, 1.6, 3.6 divided by 1.2 times 1.2, which is the height. इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है. करेक्ट. सो मेल्टिंग एंड रिकास्टिंग का जब भी प्रॉब्लम आता है, वॉल्यूम को इक्वेट करके फिर सॉल्व करो. डोंट फाइंड द वॉल्यूम सेपरेटली एंड देन इक्वेट. सीधा इक्वेट करो ताकि पाई 1/3 सब कट हो जाए एंड इजीली यू गेट द आंसर. You need to mention the statement, since in melting and recasting the volume remains constant, hence this ऐसा. ठीक है, next. The ratio of base area and curved surface area of conical tent is 40:41. If its height is 18 meter, find the air capacity of the tent in terms of pi. Air capacity का मतलब वॉल्यूम. मतलब वो टेंट का वॉल्यूम ढूंढना है इन टर्म्स ऑफ पाई, मतलब पाई की वैल्यू नहीं डालनी है हमें. नाउ व्हाट दे हैव गिवन द रेशियो ऑफ बेस एरिया एंड कर्व्ड सरफेस एरिया. बेस एरिया is pi r square, curved surface area
is pi r l, और इन दोनों का रेशियो है 40:41, एंड हाइट भी दिया है हमें, हाइट कितना है 18 मीटर। हमें क्या ढूंढना है, वॉल्यूम। ओके, दिस इज इंटरेस्टिंग। सबसे पहले वो जो रेशियो दिया ना उसको सिंप्लीफाई करेंगे। सो पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर एल इज इक्वल टू 40/41. Pi pi cut. R will get cut with R square, so I get R by L का ratio which is 40/41. इसका मतलब है कि R, let R is equal to 40x and L is equal to 41x, और हमारे पास हाइट है तो हम रेडियस ढूंढ सकते हैं। बेसिकली हमें x ढूंढना पड़ेगा। सो वी नो वन रिलेशन विच इज L square is equal to R square plus H square. इसमें सारी वैल्यूज हम डाल सकते हैं। L की जगह पे विल पुट 41x द होल स्क्वायर, R की जगह पे विल पुट 40x द होल स्क्वायर, प्लस H की जगह पे विल पुट 18 स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करके x ढूंढो, x की वैल्यू R रेडियस में सब्स्टिट्यूट करके रेडियस ढूंढो। रेडियस है, हाइट है, तो तुम वॉल्यूम भी ढूंढ सकते हो। कम ऑन। Yes, please. वेरी गुड। सो मीन्स x की वैल्यू कितनी आई तुम्हारी, 2, एंड द रेडियस वाज 80।
and then you put the value and get the answer in terms of pi. So not much calculation. Take it. Right? Okay, let's go ahead. Find what length of canvas 2 meter in width is required to make a conical tent 12 meter in diameter and 63 meter in slant height. Also find the cost of canvas at the rate of rupees 150 per meter. Per meter. You know, whenever you go to buy a cloth, you buy it as per its length. कभी भी कोई कपड़ा खरीदते हो तो it is the rate is per length, per meter, per unit length. They will never sell you as per the area because the width is fixed. इसकी जो width है ना वो fix है. बट इसकी लेंथ डिपेंड करती है तुम्हें कितना चाहिए. तो इस ये जो कैनवास है उसकी विड्थ है 2 मीटर. लेंथ तुम डिसाइड करोगे तुम्हें कितनी चाहिए डिपेंडिंग अपॉन व्हाट यू वांट टू मेक. हियर यू वांट टू मेक अ टेंट. अब ये टेंट का डायमीटर 12 मीटर है. डायमीटर 12 मीटर होगा तो रेडियस कितनी होगी 6 मीटर एंड 63 मीटर स्लैंट हाइट है मतलब L 63 मीटर. अब तुम्हें अगर टेंट बनाना है तो टेंट के लिए कपड़ा खरीदना है तो तुम वॉल्यूम ढूंढोगे या कर्व्ड सरफेस एरिया ढूंढोगे या टोटल सरफेस एरिया ढूंढोगे. तो मतलब तुम टेंट में नीचे भी कपड़ा लगाते. टेंट में कपड़ा सिर्फ कर्व्ड सरफेस में होता है ना नीचे होता है ना हम अंदर कपड़ा भरते हैं. सो वॉल्यूम ढूंढने का तो कोई सवाल ही नहीं. अंदर तो खाली जगह है. सो द cloth is just on the curved surface. That's why we will use R and L to find the curved surface area which is pi r L. कर्व्ड सरफेस जो मिलेगा एरिया उसको हम लोग एरिया ऑफ क्लॉथ रिक्वायर्ड से इक्वेट कर देंगे. तो वी कैन मेक एन इक्वेशन, कंबाइंड इक्वेशन. कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन is equal to area of cloth required. Curved surface area is pi r L. Area of cloth is length into breadth. जानबूझ के मैंने कैपिटल L लिखा है क्योंकि दोनों के पास स्मॉल l होगा तो कंफ्यूजन होगा तुम्हें. एक स्लैंट हाइट है और एक लेंथ ऑफ क्लॉथ. पाई आर एल में पाई इज 22/7, r इज 6, l इज 63. कैपिटल L मुझे नहीं पता है, ब्रेथ मुझे पता है 2 मीटर, बाकी सब कुछ मीटर में. तो 7 9s are 63. So 22 times 6 times 9 by 2 will be the length. So length will be equal to 66 times 9. 540 plus 54. 594 मीटर लेंथ तुम्हें कपड़ा चाहिए. दैट्स हाफ अ किलोमीटर. कितना बड़ा टेंट है ये. यस यू आर राइट. टू मच क्वांटिटी है. सर्कस बनाएंगे क्या इससे. लेंथ ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड एंड कॉस्ट तुम्हें ढूंढनी है. सो कॉस्ट इज वेरी इजी. कॉस्ट इज इक्वल टू rate times quantity. This is a general formula for cost. Rate is 150, quantity is 594. पर मीटर ही होता है लेंथ कॉस्ट.
तो if you multiply, you get the answer for cost. किसी का फोन बज कर रहा है. Zero. 89,100 rupees. Correct. Next question. A vessel in the form of an inverted cone is filled with water to its brim. मतलब its height is 20 centimeter. When they say height, it is the perpendicular height, not the slant height. It is 20 centimeter. And diameter is 16.8 centimeter. So how much will be the radius? 16.8 का half, 8.4 centimeter. Two equal solid cones are dropped into it so that they fully submerge. दो solid cone को लिया और इसके अंदर submerge कर दिया. मतलब ठीक है. As a result, 1/3 of water in the original cone overflows. ठीक है. What is the volume of each of the solid cones submerged? Archimedes principle. So volume of solid immersed is equal to volume of water displaced. So that's our opening statement. Now be very, very careful. Volume of solid immersed. हमें वॉल्यूम का कोई आइडिया नहीं है, ना कोई डायमेंशन पता है. वो छोटे दो कोन्स के डायमेंशन हमें नहीं पता है. हमें ढूंढना क्या है? वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ईच ऑफ द सॉलिड कोन. तो मैं यहां पे लिखूंगा 2 टाइम्स v. 2v क्यों लिखा? बिकॉज ये v जो है ना, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ दैट स्मॉल सॉलिड कोन. लेट, यहाँ पे स्टेटमेंट लिखना जरूरी है. लेट द वॉल्यूम ऑफ ईच solid cone be v centimeter cube. ठीक है. सो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्स इज 2 टाइम्स v बिकॉज दो कोन इमर्स किए. वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस. नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी इंटेलिजेंट. एज अ रिजल्ट 1/3 ऑफ द वाटर इन द ओरिजिनल कोन ओवरफ्लोज. इसका मतलब यहां पे आएगा 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोनिकल वेसल. कोनिकल वेसल का जो वॉल्यूम है उसका 1/3 ऑफ वाटर तो ओवरफ्लो हो गया, डिस्प्लेस हो गया, इसलिए 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोनिकल वेसल. 1/3 टाइम्स. अच्छा मुझे बता वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है? तो और एक 1/3 आएगा टाइम्स पाई टाइम्स आर स्क्वेयर, दैट इज 8.4 का स्क्वेयर, टाइम्स एच, दैट इज 20. So you need to simplify this and find v. Just v.
246.4. Let's check if that is correct. That is correct. Did you get this in the end? 28 into 4.4. सबको सिंपलीफाई मैंने 11 into 4 into 2 पहले कर लिया था. अच्छा अच्छा. उसके बाद 11 into 8 into 2.8 फिर 88 into 2.8. हाँ ठीक है. 88 into 2.8 मैंने मुझे 4.4 into 28 आया. ओ यस 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 4 2 8. मेरी मिस्टेक है. करेक्ट. ठीक है. दिस इज वन क्वेश्चन विच आई हेट. एब्सोल्युटली हेट. बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा आंसर गलत आता है इसमें. सही आता है तो मैं सरप्राइज हो जाता हूँ. अरे वाह सही आ गया. जस्ट इमेजिन दैट इज दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन जिसका आंसर मुझे गेस करना पड़ता है. लेट्स सी क्या है. फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड to make a conical tent 14 meter high and 96 meter in diameter, given that 20% of the canvas is used in folds and stitchings, and canvas used in folds and stitching is 20% of the curved surface area of the tent. मतलब दो केसेस दिए, केस 1 केस 2, दोनों के आंसर अलग अलग. बैठ जाता है. नींद उड़ाते थोड़ी. क्या है. So we have to find the area of canvas required to make a conical tent 14 meter high, height है 14 meter and 96 meter in diameter. मतलब रेडियस कितनी होगी? 48 मीटर. ठीक है. मतलब हमें कौन सा एरिया ढूंढना पड़ेगा? टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया या वॉल्यूम? यू आर राइट. सो कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए तो एल चाहिए और L will be under root of R square plus H square. So that is 48 square plus 14 square. Can you tell me how much is that? फोर्टी एट का स्क्वायर कितना आया तुम्हारा? 2. कंफर्म करो कोई तो. 2-3 लोगों का 2304 आया राइट? Yes, sir. So 2304 plus 196. Are you sure? क्योंकि 2510 will make our matter worse. 2500 ना. सो मतलब 50 मीटर है तुम्हारा स्लैंट हाइट, जो करेक्ट है.
ठीक है, तो तुम्हारे पास स्लैंट हाइट है, रेडियस है, जो कर्व्ड सरफेस एरिया ढूंढने के लिए चाहिए। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, बिकॉज अभी तक तो हमने सिर्फ प्रिपेयर किया कि कैसे कैलकुलेशन करना है। नाउ इन क्वेश्चन दे हैव mentioned the first part of the question, they have mentioned that 20% of the canvas used is used in folds and stitchings. So what is this canvas used? Area of the canvas, the cloth, मतलब हम क्लॉथ खरीदेंगे और उसका 20% हम पहले ही कट कर देंगे, क्योंकि वो फोल्ड हो जाएगा, स्टिच हो जाएगा, और बाकी जो बचेगा वो क्या होगा? एक्चुअल कर्व्ड सरफेस एरिया। तो इससे इक्वेशन ये बनेगा कि एरिया ऑफ कैनवस इज इक्वल टू 20% ऑफ एरिया ऑफ कैनवस प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया। सही है ना? जो हमने कैनवस खरीदा उसका 20% हमने यूज किया फोल्ड्स और स्टिचेस में, और बाकी का हमने यूज किया कर्व्ड सरफेस एरिया में। तो कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया यूज्ड इन फोल्ड्स एंड स्टिचिंग इज इक्वल टू द टोटल एरिया ऑफ कैनवस, और हमें टोटल एरिया ऑफ कैनवस ही ढूंढना है। ठीक है, सो एक स्टेटमेंट लिखेंगे हम लोग यहां पे, लेट द एरिया ऑफ कैनवस बी x मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया ऑफ कैनवस को x ले लेंगे, यहां पे क्या लेंगे? 20% ऑफ x प्लस यहां पे क्या लेंगे? पाई आर एल। तो x इज इक्वल टू 20/100 टाइम्स x प्लस पाई इंटू आर इंटू एल। इसको तुम्हें सॉल्व करना है। यहां तो कुछ भी कट नहीं हो रहा, कैसे होगा यार? रेडियस 48 है, स्लैंट हाइट 50 है। है 42 होगा। अपॉन 7। एलसीएम लिया मैंने, 5x माइनस एक्स बाय 5। x by 5 क्यों हुआ? क्योंकि 20% of x is 20/100 into x, which is x by 5 will go that side, x minus x by 5. Yes, final you have to, it's 22 times 12 times sorry, times 250 अपॉन 7। इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना, पॉइंट में नहीं। कट करो, यही आएगा।
132,000 14 is 6600 by 7 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा ना. 132 का हाफ 66 है. लेकिन आर यू श्योर 000 शुड बी 00. तो मेरा एक जीरो मिसिंग है इसका मतलब. आर यू श्योर? I missed 10 here. 22 था. पॉइंट हमें नहीं लाना है, मिक्स फ्रैक्शन, क्योंकि उनका आंसर मिक्स फ्रैक्शन में था. नाइन फोर टू एट 9428 4/7 सेंटीमीटर क्यूब. 9428 4/7. श्योर? कंफर्म ना? 9428 4/7 इज करेक्ट आंसर. मैं भी खुश हूं क्योंकि मेरा मेथड सही है. ये समझना ना, मेरी मिस्टेक भी पहले कहाँ होती थी ये मुझे अब समझ में आ रहा है. ये समझना कि 20% ऑफ द कैनवस यूज्ड, तो ये जो कैनवस यूज्ड है दैट इज द ओरिजिनल एरिया ऑफ द कैनवस विच वी हैव टेकन एज एक्स. वो x का 20% फोल्ड्स और स्टिचिंग में चला गया, बाकी कर्व्ड सरफेस एरिया में. दोनों को ऐड कर दो, टोटल एरिया मिल जाएगा. बट सेकंड केस में क्या होगा अब तुम बताओ मुझे, बिकॉज मुझे तो समझ में आ गया है. कैनवस यूज्ड इन फोल्ड्स एंड स्टिचिंग इज 20% ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द टेंट. Is equal to 20% of canvas plus area is equal to 20% of curved surface area plus curved surface area. you're right. 20% of curved surface area folds and stitching में गया plus curved surface area will give you the total area of canvas. अब दूसरा इक्वेशन बनेगा. area of canvas is equal to 20% of CSA जो folds और stitching में यूज हुआ plus CSA. ठीक है. सो इसको पहले ही सिंप्लीफाई कर लो क्योंकि ये इजी हो जाएगा. 20/100 into CSA plus CSA, that is CSA by 5 plus CSA, that is CSA plus 5 CSA 6 CSA by 5. हाँ, अब CSA की वैल्यू डालो. 6/5 into पाई 22/7 into R. रेडियस कितना था? 48 into L कितना हो गया? 50. 5 10s और कुछ भी कट नहीं होगा. So we have 6 times 22 times 480 divide by 7. मिक्स फ्रैक्शन में लेके आओ. एरिया ऑफ कैनवस CSA pi RL, that's it. There is no वॉल्यूम में होता है 1/3. Okay, we have just 20 minutes.
नहीं नहीं, कुछ नहीं करना है। एरिया ऑफ कैनवस डायरेक्टली तुम्हें आएगा ना यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन में। यू गॉट द आंसर, दैट्स इट, नथिंग यू टू डू। उसमें वो ऐसा एक्स लिया था हमने क्योंकि वो, हाँ दैट्स इट, इसी को मिक्स फ्रैक्शन में कर देना है ये आंसर को। कितना है? नहीं आना चाहिए 82 2/7। 82 पॉइंट कैसे? 480 इंटू 22 इंटू 6 है। 9051 9051 3/7 9051 3/7 मीटर स्क्वायर, यू आर करेक्ट। 9051 3/7 मीटर स्क्वायर। राइट, तो डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन हो गया अपने से करेक्ट। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ कोन। The capacity and base area of right circular conical vessel are 9856 centimeter cube and 616 centimeter square. पहले तो मुझे बताओ व्हाट इज कैपेसिटी। वॉल्यूम। कैपेसिटी कितना है? 9856 सेंटीमीटर क्यूब। एंड बेस एरिया मतलब पाई आर स्क्वायर कितना है? 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द सी एस ए। और ये क्या है? कोन, इट्स अ कोन। ठीक है, सबसे पहले फाइंड द रेडियस। सो पाई आर स्क्वायर इज 616, r square is equal to 616 times 7/22। 22 और 616 डिवाइड होता है। नहीं हो रहा है? नहीं नहीं, इनको डिवाइड नहीं कर सकते डायरेक्ट। है ना 28 22 into 28 11 616 28 आता है यहाँ पे, हो गया फिर। सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 28 विच इज 4 7 जा times 7. So r square is equal to 4 times 7 square. So r square is equal to 2 times 7. So r is equal to 14 सेंटीमीटर। रेडियस आ गई। ठीक है, रेडियस आ गई। अब वॉल्यूम से हम लोग हाइट ढूंढेंगे। वॉल्यूम इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच ऑफ अ कोन। सो वॉल्यूम कितना है? 9856 इज इक्वल टू 1/3 into 22/7 into r square which is 4। हे, r square तो ऑलरेडी था हमारे पास 196, डायरेक्टली 196 लिखेंगे टाइम्स h। सो 9856 टाइम्स 3 टाइम्स 7 divided by 22 times 196 is equal to h।
38 is the height. 48 is the height. $48, sure. Okay, we are getting 2 48s. One more. जिसको 48 आया है वो लोग आगे, बिकॉज सी ए से ढूंढना है तो वी नीड एल, राइट? सो एल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. ट्राई करो 48 से. बाकी लोग 48 निकालो. क्या हो गया? ओके, सो इसका मतलब एच करेक्ट है 48 सेंटीमीटर, क्योंकि एल की वैल्यू आती है 14 स्क्वायर प्लस 48 स्क्वायर विच इज 50 सेंटीमीटर. और तुम्हें अभी सी ए से ढूंढना है. सो सी एस ए इज पाई आर एल, राइट? दैट इज 22/7 times 14 times 50. That is 2200 centimeter square curved surface area, right? You're right. Okay, great. So we are done with first two parts, cylinder and cone. अब हम लोग पहले ये वीडियो को स्टॉप करते हैं.